बेटा अपने ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰ-ਪਿਟ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੋਂ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਐਂਡ ਜਰਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲਸ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਚਾਰ-ਪਿਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਟੈਪ ਫਰਸਟ del f upon del x del f upon del y del f upon del z del f upon del b del f upon del q ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ dx upon ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ del f upon del p dy upon minus del f upon del q dz upon minus p into this minus q into this dp upon del f upon del x plus p del f upon del z dq del f upon del y plus q del f upon del z बेटा ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਗਰੇਜ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ p और q ਜਾਂ both values ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ put in given equation p find q if q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ put in this we find p put the value p and q in किस पुट करना है dz equal to p dx plus q dy फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ we get complete solution मैं फर्स्ट एग्जांपल कराने लग गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈਟ f x y z p q किस दे इक्वल बन गया पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड मतलब यह वैल्यू आ गई बेटा देन अपने की फाइंड करना सी स्टेप फर्स्ट बेटा डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो एक्स नाल करूं बेटा वाई पी सारे की हो गए बेटा कांस्टेंट कितना आ गया पी वाई ओके डेल एफ अपॉन डेल वाई जो y ਨਾਲ ਕਰੂ ਬੇਟਾ px q y ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ z ਓਕੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰ del f upon ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ del f upon del z ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ z ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ फिर बेटा del f upon del p कितना आ गया बेटा हो एक्स वाई प्लस क्यू ओके बेटा फिर del f upon del q कितना आ गया बेटा क्यू नाल कर रहे हैं p प्लस y ओके बेटा इन मैं इस इक्वेशन च पुट कर लग गया बेटा स्टेप फर्स्ट हो गया स्टेप सेकंड dx upon माइनस p minus del f upon del p minus xy minus q फिर बेटा इक्वल टू dy minus del f upon del q minus p minus y फिर बेटा आगे dz upon minus p del f upon del p xy plus q minus q p प्लस y ओके बेटा फिर अगे dp अपॉन del f अपॉन del x py प्लस p del f अपॉन del z माइनस y dq अपॉन del f अपॉन del y प्लस q del f अपॉन del z बेटा यार ऐसे देखो बेटा और एक कैंसिल हो गए dp इक्वल टू 0p किधर इक्वल आ गया बेटा a इसनु फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लियो बेटा a की होगी सेकंड
ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਸੋਲਵ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਦੇਖੀ ਚਲੋ P ਜਾਂ Q ਔਰ ਬੋਥ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪੁੱਟ ਇਨ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਟੈਪ 4 ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪੁੱਟ ਇਨ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਇਨ 1 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ a axy aq plus qy equal to yz। बेटा वो q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ a plus yq yz minus axy ਤਾਂ ਮਤਲਬ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ y ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ z minus ax upon a plus y। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 5 we know that dz ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ p dx plus q dy। ਸੋ dz ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ a q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ y z minus ax upon a plus y dy। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੁੱਤੋ ਮਿਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ z minus ax। ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ z ਤੇ ax ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਟਾ y ਦੀ ਟਰਮ y ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਉਰੇ z minus ax ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ dz minus a dx y into z minus ax upon a plus y dy। ਓਕੇ ਪੁੱਤੋ d z minus a sorry dz minus a dx z minus ax। ओके बेटा y upon a plus y dy। बेटा बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो d ये जो d कॉमन कर लिया बेटा डेरिवेटिव आई लिखा है देखो dz minus a dx व्हाट इज a is constant z minus ax। बेटा इस दे विच मैं न्यूमरेटर ऊपर प्लस ते माइनस करता बेटा न्यूमरेटर दे विच बेटा की करता a plus a minus पूरे कितना आ गया बेटा देखियो डेरिवेटिव मतलब देखो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया ना ऊपर कुत्ते दा ਇਹਦਾ एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦਾ डेरिवेटिव ऊपर ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ log। बेटा कितना आ गया और कैंसिल 1 minus a upon a plus y dy। ਹੁਣ बेटा इंटीग्रेशन करो इसका कितना आ गया log z minus ax y minus a log a plus y plus b। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ 2 a ਤੇ b। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪੇ ਲਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट सिमिलर एंड जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट करांगे। देखो बेटा सेकंड एग्जांपल में लिखा सॉल्व दिस ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੋਲਵ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲਵ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਸਿੰਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਜਰਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਲੈਟ f x y z p q equal to p square plus q square y minus q z। First we find del f upon del x 0 del f upon del y p square plus q square del f upon del z minus q del f upon del p 2p y and del f upon del q 2qy minus z। सो बेटा मतलब ये आ गई मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा बेटा इस तो बेटा मैं अगे इस स्टेप सेकंड दे बेटा dx upon की सी बेटा माइनस del f upon del p minus 2py dy upon minus del f upon del q। सो अगे बेटा dz upon minus p minus 2py minus q minus 2qy plus z।
नेक्स्ट डी पी पॉन बेटा कितना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस क्यू। अगे बेटा डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई पी स्केयर प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस क्यू। सो की आ गया बेटा, देखो इस च वाई पे है बेटा, इस च वाई जेड आ गया, तो नेचुरली आप पी क्यू वाले आप दोनों लिख लिए पुत्र, आप दोनों सेलेक्ट कर ले, डी पी पॉन माइनस पी क्यू डी क्यू पॉन पी स्केयर, क्यू स्केयर ना क्यू स्केयर की हो गया कैंसल, सॉरी पूरे पी ना पी, तो की आ गया बेटा डी पी पॉन माइनस पी एंड माइनस डी क्यू पॉन पूरे कितना आ गया बेटा क्यू, पूरे कितना बच गया पुत्र पी। सो मेरे लिए कितना बन गया बी पी डी पी माइनस क्यू डी क्यू। इंटीग्रेशन करिए बेटा पी स्केयर बाय टू इक्वल टू माइनस क्यू स्केयर बाय टू, सारे बाय टू पॉन टू आ रहे ना बेटा, मैं उरे ए पॉन टू लिख लिया। सो कैंसिल हो गया बेटा, मेरे लिए की बन गई बेटा वैल्यू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू ए। इसनु फर्स्ट इक्वेशन लिखा सी, इसनु की लिख लो बेटा सेकंड, पूरे पहुंच गए बेटा। मैं क्या सी सॉल्व फॉर पी और क्यू, फिर वैल्यू किस पुट करनी है बेटा गिवन इक्वेशन च, पुट इन 1 बेटा 1 च पुट करिए ए वाई इक्वल टू क्यू जेड, मेरे लिए क्यू दी वैल्यू कितनी आ गई ए वाई अपॉन जेड, क्यू दी वैल्यू आ गई, पी दी वैल्यू काट लो, पुट इन सेकंड बेटा पी दी वैल्यू दसो कितनी आ गई, पी स्केयर इक्वल टू ए माइनस क्यू स्केयर, ए माइनस ए स्केयर वाई स्केयर अपॉन जेड स्केयर, ए इंटू जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर अपॉन जेड स्केयर। बेटा पी दी वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस रूट ए अपॉन जेड रूट जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर। ओके, टेक पॉजिटिव साइन बेटा, एक साइन चूज कर लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन। सो मेरे लिए कितना आ गया बेटा पी दी वैल्यू रूट ए अपॉन जेड रूट जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर। ओके बेटा, मेरे लिए पी दी वैल्यू आ गई, क्यू दी वैल्यू आ गई। वी नो दैट बेटा की सी पुत्र पे लवे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। बेटा देखियो कितना बन गया डी जेड, पी दी वैल्यू कितनी है बेटा रूट ए अपॉन जेड रूट जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर, अगे बेटा नाल की है डी एक्स प्लस क्यू दी वैल्यू कितनी है ए वाई अपॉन जेड डी जेड। बेटा हम ध्यान रखा करो जो पिछले लास्ट एग्जांपल से वो रिलेशन एक्स ते जेड च आया सी, मैं एक्स जेड वाले इकट्ठे कीते सी, और ਇਹ ध्यान देखो कि ये जेड ते वाई च, तो सुनी जेड ते वाई वाले इकट्ठे कर लेने, पहला जेड ना मल्टीप्लाई कर लो बेटा, जेड ना मल्टीप्लाई करिए पुत्र कितना बन गया जेड डी जेड। बेटा मैं एक बोर्ड साफ कर रहा हूँ, देखो बेटा मैं हूँ की कर रहा है जेड ना इधर मल्टीप्लाई करता है, कितना बन गया पुत्र जेड डी जेड माइनस ए वाई डी जेड, ठीक है पुत्र, सॉरी डी वाई कितना आ गया ए वाई डी वाई इक्वल टू, मैं जेड ना मल्टीप्लाई करता बेटा, उस तो बाद मैंने ए वाई में तो शिफ्ट करता, लेफ्ट हैंड साइड की रहेगा मतलब रूट ए ना जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर डी एक्स। ओके बेटा उत्तर उस तो अगर देखिए उत्तर की बन गया इन इस तरफ लाया बेटा मैं जेड डी जेड माइनस ए वाई डी वाई अपॉन जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर इक्वल टू रूट ए इनटू डी एक्स। एक चीज देखो बेटा इसका डेरिवेटिव ऊपर बाहर है, जी रूट के टर्म है इसका डेरिवेटिव बाहर है, ध्यान देखिए तो जेड स्केयर का डेरिवेटिव 2z वाई स्केयर का 2y, तो मतलब कितना बन गया देखियो 2z dz 2ay dy अपॉन रूट जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर 2 रूट ए dx। ओके, बोथ साइड में 2 ना की करता है बेटा मल्टीप्लाई करता, तो की आ गया बेटा इंटीग्रेशन करियो पूरे की बन गया d 2z माइनस 2ay अपॉन इनमें लिखना पुत्र में
जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर दी माइनस 1/2 इंटू डी 2z माइनस 2ay इक्वल टू 2 रूट ए डी एक्स। क्लियर है बेटा स्टेप तक समझ आ गया पुत्र। फिर इसका डेरिवेटिव आ गया बेटा देखो जेड स्केयर दा 2z ए वाई दा वाई स्केयर दा 2ay सो की आ गया बेटा जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर टी पुट करता टी माइनस 1/2 dt कितना बन गया 1/(-1/2 + 1 -1/2 + 1 2 रूट ए एक्स प्लस कितना आ गया बेटा मेरे बी। सो की आ गया बेटा जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दो बेटा इधर रूट ए एक्स एक हम कर सकते बेटा और b/2 रख लो ताकि 2 नाल 2 की हो जाए 2b ठीक है बेटा b नाल b की हो जाए कैंसिल कांस्टेंट रखना जिवें और मैं a/2 रख लिया उत्ते 2b पुत्र कितना बन जाऊगा ना प्लस। क्लियर है बेटा स्केयरिंग कर दो एक ही आ गया पुत्र मेरे लवे कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके पुत्र ए मेरे लवे कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके पुत्र तो अपने की फाइंड करना है बेटा अपने नेक्स्ट वो बेटा अपने सिंगुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। याद करो बेटा सिंगुलर सॉल्यूशन की सी सिंगुलर सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ del f upon del a ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖ ਲਿਓ ਬੇਟਾ del f upon del a equal to 0 del f upon del b equal to 0 ਤੋਂ ਆਪਾਂ a b ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ z x y ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਲੈਟ मैंने f कंसीडर कर लिया बेटा जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर माइनस रूट ए एक्स प्लस बी द होल स्केयर देन इक्वल टू 0 एक इक्वेशन तो बेटा ये होगी ठीक है पुत्र। उस तो बाद नेक्स्ट आप करते सी डेल एफ अपॉन डेल ए कितनी बन गई पुत्र देखियो माइनस 2ay सॉरी माइनस वाई स्केयर माइनस इसका डेरिवेटिव करिए पुत्र विद रिस्पेक्ट टू ए इनटू इज द विद रिस्पेक्ट टू ए करना बेटा x ओके उस तो विद इन इक्वल टू g दिस फिर बेटा डेल एफ अपॉन डेल बी 0 माइनस 2 रूट ए एक्स प्लस बी दी 1 इक्वल टू 0 फिर b नाल करता बेटा इसकी वैल्यू 0 होगी उरे 0 हो गया ध्यान देखो बेटा इसकी वैल्यू उरे पुट करती 0 तीनों सॉल्व करके अपने सिंगुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होता बेटा ए वैल्यू उरे पुट करती 0 y की हो गया 0 y0 आ वैल्यू 0 होगी देखो y की वैल्यू 0 होगी उरो ए वैल्यू उरे पुट कीती पुत y0 आ गया 0 ए दी वैल्यू 0 पुट करती मेरे लवे की आ गया z इक्वल टू 0 की आ गया सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ आ गया बेटा सिंगुलर सॉल्यूशन की मैं कैलकुलेट करना है हुण आप कट लगे बेटा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ याद करो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेशन कराई सी कि पुट करते सी लेट b ਨੂੰ मैं फंक्शन ऑफ a पुट कर लिया बेटा इस कंप्लीट सॉल्यूशन की आ गया पुट में z स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर माइनस रूट ए एक्स प्लस जी द होल स्क्वायर ठीक है इनू मैं पुत्र कोई मर्जी फंक्शन कंसीडर कर लिया कैपिटल जी कर लिया ओके फंक्शन कंसीडर कर लिया बी नू की पुट करता बेटा जी देन आप ही कटांगे बेटा डेल जी अपॉन डेल ए इन्हों डेरिवेटिव कर लांगे बेटा कितना आ गया देखियो माइनस वाई स्क्वायर माइनस इनू इक्वल टू जी पहला बेटा माइनस वाई स्क्वायर फिर इसका कितना आ गया बेटा पहला 2 रूट ए एक्स प्लस जी ए इंटू 1/2 रूट ए एक्स प्लस जी डैश ए देन जनरल सॉल्यूशन की आ गया बेटा पहले g इक्वल टू 0 डेल g अपॉन डेल a इक्वल टू 0
ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜਰਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋਲਵ ਫੇਸ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਿੰਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਰਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਪਿਟ ਮੈਥਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।